जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर 17 नेचुरल वेजिटेशन। Dear student, today I am going to teach you about the types of the natural vegetation, forest product, their utility and other topics. Dear student, in our previous chapter I have explained about the natural vegetation, position of our country, types of the trees, etc. Today I am going to teach you types of natural vegetation. First I am going to tell you about what is the meaning of natural vegetation. Existence and growth of any vegetation depend on the climate of the region. In the regions identical climate, vegetation seen in mostly identical regions of such ecological similarities are called natural vegetation region. Dear student, as we discuss about what is the natural vegetation, first the natural vegetation which grow on way, that is called natural, but here the word is different from natural vegetation region. So as we everyone know, the existence and growth of vegetation depend on the climate of the region, or in the regions we have a same type of the climate in different places, and we found the same type of the vegetation. Region of such ecological similarity, the area which have the ecological similarities are called natural vegetation. So here, as we everyone know, the region of such ecological similarities are called natural vegetation region. Imagine we found this area natural vegetation, we also found here, if there is a similarities in both, that is called natural vegetation regions. On the basis of altitude, soils and variation in temperature, the natural regions can be divided into 5 types. The types of the natural vegetation, it means on the basis of altitude, soils, rainfall and variation in temperature, the natural vegetation can be divided into 5 parts. Number 1, tropical rainforest, tropical deciduous forest, tropical desert forest vegetation or forest, temperate forest and grassland, mangroves, tidal forest. So in this way, according to the altitude and soils, rain and temperature based, we have divided our vegetation into 5 categories. Dear student, हमने सबसे पहले आपको यहाँ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया कि नेचुरल वेजिटेशन रीजन क्या होता है। तो देखिए, ऐसे क्षेत्र में जो जहाँ हमारा एक तरह का सेम तरह का क्लाइमेट, टेम्परेचर और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड इक्वल मिलती है, वहाँ हम लोग इक्वल तरह के फॉरेस्ट प्राप्त करते हैं या वेजिटेशन प्राप्त करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कोल्ड सिमिलरिटीज़ वाले हैं ना, सिमिलरिटी शब्द लिखा हुआ आप ध्यान दें, तो नेचुरल वेजिटेशन रीजन बोलते हैं। अब देखो, हमने इस वेजिटेशन को हमने 5 भागों में बांटा है। उसका मेन बेसिस है एल्टीट्यूड, हाइट के आधार पर, समुद्र तल से
ऊंचाई के आधार पर, सोइल मिट्टी के आधार पर, रेनफॉल और वेरिएशन इन टेम्परेचर, बारिश और टेम्परेचर के आधार पर हमने 5 भागों में बांट दिया गया है। उनके 5 टाइप्स इस प्रकार हैं: ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड और मंग्रूव्स। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है खास करके हमें हॉट, गर्म और ह्यूमिड वाले क्षेत्र में, वेयर एनुअल रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर, जहाँ बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है एनुअल, टेम्परेचर इज़ मोर देन, जहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। सच फॉरेस्ट आर फाउंड, इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं हैवी रेनफॉल ऑफ वेस्टर्न घाट, हमारे देश के अंदर वेस्टर्न घाट में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अपर रीजन ऑफ आसाम, आसाम के ऊपरी भाग में, कोस्टल तमिलनाडु। तो यहाँ सबसे पहले बात हम कर रहे हैं कि देखो जहाँ रेन फॉरेस्ट कहा गया, जहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं और 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की बात होती है। और यहाँ खास करके ये जो क्षेत्र है हमारा वेस्टर्न घाट के अंदर हमें अवेलेबल होते हैं, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार आइलैंड, और इसके अतिरिक्त हमको जो है वो अपर रीजन्स ऑफ द आसाम एंड तमिलनाडु में। अब वहाँ पे किस तरह के ट्री होते हैं तो देखिए, ट्रीज आर फाउंड हियर महोगनी, इबोनी, रोजवुड एंड रबर। इस तरह के पेड़ हमें प्राप्त होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रीज आर हैव अबाउट 60 मीटर टॉल। देखो यहाँ के जो ट्रीज होते हैं उनकी विशेषता है 60 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं। देयर इज़ अ मोर ह्यूमिडिटी ड्यू टू द स्क्रब्स, की वजह से वहाँ ह्यूमिडिटी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। देयर इज़ नो सीजन हियर लाइक ऑटमन, ऑटमन सीजन के लिए यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इज दिस ट्रीज आर एवरग्रीन, क्योंकि हमेशा एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब हमेशा सदा हरे भरे रहना। द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एवरग्रीन का मतलब ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ 2 नंबर में है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन रिसीविंग, है ना, रिसीविंग 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में तो होते हैं जहाँ 70 से लगा करके 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये खास करके हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय फुट हिल्स, इसके अतिरिक्त देखो हमारे यहाँ हिमालय के फुट हिल्स में भी हमको इस तरह के जो पेड़ हमको नज़र आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ किस क्षेत्र के अंदर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। इसके अतिरिक्त देखो वेस्टर्न उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट, विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज, देयर इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस ट्रीज फॉरेस्ट इन फाउंड। ये मोस्टली भारत में सबसे ज़्यादातर पाए जाते हैं इस तरह के। मेजर ट्रीज जो हैं इनके, जो इनका मेजर ट्री है वो है, मेजर ट्रीज ऑफ आर दे आर टिक, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर और बम्बू, ये इनके मुख्य पेड़ इस तरह के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज हियर इज ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक ड्यूरिंग ऑटमन। देखो इसका मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रीज शेड, ट्री की जो शेड होती है, देयर लीव्स
फॉर 6 to 8 वीक के लिए ड्यूरिंग ऑटोमन के अंदर चली जाती है। एवरी स्पीसीज हैज़ डिफरेंट टाइम, लेकिन हर समय अलग अलग ट्री का अलग अलग टाइम होता है। एक साथ मतलब यहाँ ध्यान देना, एक साथ यहाँ पे मतलब सबकी पत्तियाँ नहीं चाहती हैं, अलग अलग समय में, इसलिए ये हरे भरे तो नज़र आते हैं लेकिन अच्छी तरह से हैं। तो देखिए यहाँ इनकी ये विशेषता है, एवरी स्पाइसीज हैज़ डिफरेंट टाइम टू शेड, हर अलग अलग पेड़ पौधे के अलग अलग समय में होता है जो पत्तियों का झड़ना है ना। सो ऑल द ट्रीज आर नेवर विदाउट लीव्स, पूरा जो फॉरेस्ट होता है कभी हमेशा बिना पत्तियों के नहीं होते, नहीं पर्टिकुलर सीजन। एंड दिस ट्री शेड देयर लीव्स अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन्स के अनुसार उनकी पत्तियां झड़ती जाती हैं। दीज आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर का हमारा जो है यहाँ ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। तो देखो यहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ऐसे क्षेत्रों के अंदर ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, भारत के हमारे वेस्ट पार्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर, जिसमें से देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके अंदर जो हमारे पेड़ हैं वो हैं जुजुबे, एसिका, कैक्टस, खिजड़ो आर कॉमन ट्रीज, यहाँ पे कॉमन मिलते हैं हमको। इन पेड़ों की जो विशेषता है, वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो उनकी विशेषता क्या है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स हियर आर लॉन्ग, यहाँ की जो जड़ें होती हैं इस तरह के पौधों की वो बहुत ही लंबी होती हैं, काफ़ी डिप जाती हैं एंड वाइड स्प्रेड इस तरह फैली हुई होती हैं। और लीव्स आर शॉर्टर, और वहाँ जो पत्तियाँ हैं वो बहुत छोटी होती हैं। रिजल्ट इन द स्लोअर एवोपरेशन प्रोसेस, इसलिए यहाँ एवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होता है छोटी पत्तियों की वजह से। तो these are the characteristics of the tropical desert forest. Now next में टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। देखिए हिमालय माउंटेन के अंदर है, अब ये अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग है ना। ये जो है टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं पेड़ों की जो साइज होती है वो छोटी होती है, और बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो केवल हमको ग्रास ही मिलती है, और जो भी छोटे वेजिटेशन अन्य पौधे होंगे तो वो भी छोटे छोटे घास की तरह होंगे। देखो हाइट है वहाँ 1000 से 200 मीटर्स पर। एरियल स्पान, हाई माउंटेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल एंड माउंटेन एरिया है यहाँ। ये जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओक एंड चेस्टनट वहाँ के ट्री हैं। इसके बाद में 1500 से 300 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड, साउथ स्लोप ऑफ द हिमालय हायर एरियाज कॉनिफरियस फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और इसके जो मेजर ट्रीज हैं वो पाइन, साल, सिल्वर, फिर और स्प्रस। इसके बाद में जो 3600 मीटर्स एंड मोर, उससे ज़्यादा की ऊंचाई वाला एरिया जो है ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट हायर एल्टीट्यूड हिमालयाज एंड नियर स्नो, जो स्नो के आसपास वाले एरिया में फॉरेस्ट है। अल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रास, अल्पाइन टुंड्रा वेजिटेशन, छोटी छोटी घास होती है, इसमें सिल्वर फिर और बीच। अब यहाँ जो टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर जो ग्रासलैंड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वहाँ के पेड़ पौधों की। ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनिफरियस फॉरेस्ट इज द ट्री हैव कॉनिकल शेप, उनके जो ट्री होते हैं वो कॉनिकल शेप में, कोण के समान होते हैं। देयर ब्रांचेस लीन, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो झुकी हुई होती हैं सरफेस की ओर, जिससे स्नो वुड नॉट इजीली स्लाइडली, इसलिए वहाँ पर जो भी स्नो गिरे वो इजीली स्लाइड हो जाए एंड लैंड के ऊपर। एंड द ट्रीज आर लॉन्ग, लीव्स आर लॉन्ग, उनकी पत्तियाँ लंबी होती है, ट्रीज नहीं होते हैं, पॉइंटेड स्टिकी होता है उनकी पत्तियों का। एंड विच कैन कंजर्व ह्यूमिडिटी फॉर लॉन्गर टाइम, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी को लंबे समय तक रख सकते हैं। लास्ट है हमारा टाइडल या मंग्रूव्स, ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट और मंग्रूव्स।
टाइडल फॉरेस्ट आर लोकेटेड, ये जो होते हैं वो दलदलीय क्षेत्र में होते हैं, तो खास करके ये डेल्टा रीजन ऑफ रिवर एलोंग कोस्ट नदी के किनारों पर होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड एलोंग गुजरात कोस्ट, गुजरात के कोस्टल एरिया में, मार्शीलैंड एलोंग विद बे ऑफ बंगाल कोस्ट, ठीक है। बे ऑफ बंगाल मतलब जहाँ समुद्र और नदी के बीच का जो तटीय क्षेत्र होता है, मतलब दलदल वाले क्षेत्र में इनका ग्रोन होता है। अब यहाँ इसके अंदर सुंदरी और खेर ट्रीज होता है, सुंदरी और खेर ट्रीज। तो इस तरह देखिए देयर आर 5 टाइप्स, इन सभी के बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कहाँ पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। देखो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोडक्ट हैं, है ना। वी फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट इज वी एवरीवन नो मेनी थिंग्स वी फाइंड फ्रॉम टू द प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ हमारे लिए मेन ह्यूमन के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। यद्यपि हमारा होल द लाइफ हमारा पूरा जीवन ही वेजिटेशन पे ऊपर डिपेंड है। तो देखो यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखें तो अगर हम उसकी यूटिलिटी को हम 2 वे से बांट सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। अब इकोनॉमिक मतलब जिससे इनको मनी मिलती है, इकोनॉमिक फ़ायदा होता है। तो अब देखिए यहाँ कौन कौन से इस तरह के पेड़ होते हैं, उनका वर्क क्या होता है। तो देखो फॉरेस्ट आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन मेनी वेज, अनेक प्रकार से उपयोगी है फॉरेस्ट। टिम्बर वुड फ्रॉम टिक, देखो टिम्बर वुड हमको मिलता है टिक से, एंड सॉल इज यूज्ड फॉर फर्नीचर मेकिंग। इन दोनों का जो उपयोग है वो हमारे को फर्नीचर बनाने के लिए काम आता है। फिर बोट्स बनाई जाती है, बोट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड ऑफ सुंदरी ट्री, है ना। ये सुंदरी ट्री से बनाया जाता है, सुंदरवन में हमको अवेलेबल होता है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड पैकिंग बॉक्सेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड ऑफ पाइन एंड चिन ट्री। इसके अतिरिक्त देखो स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं, इसके अतिरिक्त पैकिंग के जो आइटम्स होते हैं जिनको पाइन और चिन ट्री से बनाया जाता है। टर्पेंटाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम चिड, टर्पेंटाइन जो होता है जिस हमारे टर्पेंटाइन जो प्रिपेयर किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म ऑफ चिड्स के ट्री से। सैंडलवुड आप जानते हैं, चंदन जिसका यूज़ होता है प्रिपेयर परफ्यूम बनाने, परफ्यूम ऑयल बनाने के लिए, कॉस्मेटिक आइटम्स के लिए जिसका पाउडर वगैरह बनाया जाता है। इसके बाद में बास्केट, टॉयज, गुड्स, होम डेकोरेशन एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम बम्बू, बम्बू ट्री से, बांस का जो पेड़ होता है उसके अंतर्गत बास्केट बनाया जाता है, टॉयज बनाए जाते हैं, होम डेकोरेशन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो प्रोवाइड लेक, रेजिन, गम, रबर, हनी, ठीक है, हनी कैन, आंवला, बहेड़ा, हरड़े, अश्वगंधा एंड ओल्ड मेडिसिन यूटिलिटी। देखो यहाँ हमको इकोनॉमिक वे से हम देखें तो कई यहाँ पे हमको मेडिसिन्स भी प्राप्त होती है, तरह तरह की वस्तुएं जिनके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कौन से पेड़ से क्या वस्तु बनती है। जैसे कहीं से बोट बनती है, कहीं से बास्केट बनते हैं, तो कहीं फर्नीचर। ये हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट है ना। इवन हम फॉरेस्ट से हमको देखिए और भी बहुत सारी मेडिसिन से हमको यहाँ हमारे कहीं क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। तो ये हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, दिस आर द इकोनॉमिक बेनिफिट। अब देखिए यहाँ इसके अतिरिक्त देखिए लीफ प्लेट्स होती हैं, खाकरा लीव्स, चेटू फ्रॉम खेर ट्री, बीड़ी फ्रॉम टिम्बरू की लीव से बीड़ी बनाई जाती हैं, आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड, इसके अतिरिक्त देखो सबसे बड़ा है जीवन यापन करने के लिए प्रोवाइड करता है फूड फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगलों में रहते हैं। दिस वे फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इनटू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड में वो किस तरह इकोनॉमिक बेनिफिट, देखो फर्नीचर पड़ेगा, इसके बाद में लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ कुछ वेजिटेशन देंगे और उनके मेडिसिन, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो यहाँ सर्पगंधा लिखा है, सर्पगंधा इन हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। लिमड़ो आप जानते हैं बैक्टीरिया रेसिस्टेंट। तुलसी कोल्ड कफ और फीवर को ख़त्म करता है। इसके बाद में अर्जुन सड़ा जो होता है ट्रीटमेंट फॉर हार्ट एलिमेंट्स। बिलपत्र जिसको बोलते हैं गैस और कफ इम्प्यूरिटीज करता है। गलो है ना डायबिटीज़, ठीक है, और फीवर जॉइंट पेन के लिए। गिलोय जहाँ शब्द दिया जाता है आपको ध्यान दें। हरड़े
कॉन्स्टिपेशंस और हेयर डिजीज़ के लिए हर्ड का काम होता है। आंवला क्योर गैस, एसिडिटी और डाइजेस्टिव के लिए। करंज का जो होता है स्किन एंड डेंटल गम डिजीज़ जो होती हैं। तो इस तरह यहाँ कुछ मेडिसिन का पूरा एक चार्ट दे रखा है, कौन कौन सी डिजीज़ के लिए क्या काम आता है। अब नाउ नेक्स्ट में है हमारा एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। देखो एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस में कौन कौन सा है, देखिए तो सबसे फर्स्ट है फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर ब्रिंग रेन। फॉरेस्ट का जो उपयोग है वो ब्रिंग रेन लाती है। दे कंट्रोल एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स, एटमॉस्फेयर को खराब होने से बचाते हैं। दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन, इसके अतिरिक्त देखो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे जीवन को बचाती है। फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड को कंट्रोल करते हैं। दे एब्जॉर्ब द हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो हार्मफुल गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, देखो सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट की वजह से हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर मेंटेन होता है। फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्ट द एडवांसिंग डेजर्ट, फॉरेस्ट डेजर्ट को बढ़ने से बचाते हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन द रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन को कम करने में हमारे लिए फॉरेस्ट उपयोगी हैं। फॉरेस्ट इंचांस द नेचुरल ब्यूटी को दर्शाए रखते हैं। फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। फॉरेस्ट आर आइडियल फेस ऑफ द एडवेंचर एंड टूरिज्म एक्टिविटी, देखो हमारे इसके लिए आगे के लिए हमारे लिए एक आइडियल बन जाते हैं, एडवेंचरस के लिए चांसेस होते हैं। एंड सम फॉरेस्ट आर रिजर्व द रेफरेंस ऑफ नेशनल पार्क सेंचुरीज इन बायोडाइवर्सिटी। तो शायद तक देखो हमारे इस तरीके से आपने फॉरेस्ट के जो उपयोग पढ़े। तो डियर स्टूडेंट जो ऊपर के पॉइंट्स थे वो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात आई थी, बाद का जो था वो आपका एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस की बात थी, एनवायरनमेंट के लिए कितना उपयोगी है और इसके बाद में उसके लिए कितना उपयोगी है। नाउ नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखिए आज इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, सो मच इंपॉर्टेंस, जैसे इनके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो नाउ टुडे आज हम लोग क्या करें, ड्यू टू अवर ग्रिड, हमारी ग्रिड की वजह से वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट को हम काटते जा रहे हैं। अब हमें जो सख्त ज़रूरत है इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो इकोसिस्टम इज फॉर्म ड्यू टू द इंटर रिलेशन ऑफ बायोस्फीयर एंड मैनकाइंड। इकोसिस्टम किससे फॉर्म होता है, किससे बनता है, तो इंटर रिलेशन एंड बायोस्फीयर टू मैनकाइंड, बट ड्यू टू द एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। लेकिन आज हमारे यहाँ एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ है, सेल्फिशनेस ऑफ मैन, द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब, पूरा हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। मेन इनस्टेबल डिज़ायर टू प्रोक्योर लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। देखो आज हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन मतलब फॉरेस्ट की जो बर्बादी है या कट डाउन किए गए हैं वो ह्यूमन की सेल्फिश और ग्रीडी नेचर की वजह से हुआ है। आज ह्यूमन इज द रेस्पॉन्सिबल, मानव ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय ऑल्सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो फॉरेस्ट हमारे डे बाई डे जो डिक्रीज हो रहे हैं उसके पीछे कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्याएं बढ़ती जा रही हैं। पॉलिसी ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री, दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है हमारा एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज यूनिट को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होता जा रहा है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जूम कल्टीवेशन टू गेट टिम्बर एंड फ्यूल वुड, फॉरेस्ट फायर, ये सभी रीजन है जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डे बाई डे कट होते जा रहे हैं, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है। इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से पूरा हमारा इकोसिस्टम बेकार होता जा रहा है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, देखो इसका हमें बहुत ही बुरा प्रभाव नजर पड़ रहा है। दिस इंक्लूडेड, इसमें क्या हो रहा है, रेनफॉल हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, ड्रट सूखा पड़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, इसके जो इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एडवांसिंग डेजर्ट बढ़ते जा रहे हैं, शेल्टरनेस ऑफ द वाइल्ड एनिमल, और हमारे जो वाइल्ड एनिमल है उनका शेल्टर छीनता जा रहा है। अब इसके लिए देखो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई। अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी फॉरेस्ट ऑफ 33% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ अवर नेशन।
देखो यहाँ हमारी जो हमने पॉलिसी बनाई है वो नेशनल पॉलिसी है फॉर फॉरेस्ट, ठीक है, नेशनल पॉलिसी, और वो 1952 के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग 33% हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया उसका 33% लैंड के ऊपर हमारे यहाँ फॉरेस्ट होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ भी हमारे इस प्रेजेंट ये 23% एरियाज ही है ऑक्यूपाई करता है। 10% ऑफ लैंड ओनली इन गुजरात, और अगर हम केवल गुजरात की बात करें तो ओनली देर इज अ 10%। इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट, सो प्रोटेक्शन कंजर्वेशन इज नेसेसरी। देखो आज हमें इसी स्तर पर हमें अगर ये पेड़ कटते जाएंगे तो एक दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा एडवर्स, अभी भी हम झेल रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें नाउ वी नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट, इसलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब इसके हम रेमेडीज, इसके उपचार, हम कैसे इसको बचा सकते हैं, तो देखिए यहाँ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फॉरेस्ट को कंजर्व कराने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। 1952 के अंदर उन्होंने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की। 1980 में पार्लियामेंट पास लेजिस्लेशन एक्ट, 1980 के अंदर लेजिस्लेशन एक्ट पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पारित किया। 1988 के अंदर एक न्यू पॉलिसी वापस से डेवलप की। न्यू पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। कुछ स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, तो देखो फॉरेस्ट आर आवर नेशंस रिसोर्स। सबसे पहली बात देखो, फॉरेस्ट हमारी राष्ट्र संपत्ति है। टेक इट एज अवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है उसकी सुरक्षा करना। फ्री फेलिंग शुड बी स्टॉप। देखो हम जो पेड़ों को गिरा देते, काट देते, उसे हमें रोकना चाहिए। टेक इट एज अवर इसके बाद में हैवी पनिशमेंट भी इन्फ्लिक्टेड, उस जो भी अगर कोई पेड़ काटता है उसके ऊपर हैवी, है ना, पनिशमेंट रखना चाहिए और पेनल्टी लगानी चाहिए। कट ट्रीज, जो इलीगली वैसे जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पेड़ों को काटते हैं उसके ऊपर हैवी पनिशमेंट करना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए। टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव, कई हमें ऐसे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम करने हैं जिसमें वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री। ट्री मस्ट बी प्लांटेड आइदर द साइड ऑफ द वेस्टलैंड, जहाँ पे भी वेस्टलैंड पड़ा है ना, बेकार की भूमि पड़ी है, वहाँ हमें पेड़ उगाने चाहिए। रिवर, रेलवे ट्रैक, रोड के इधर उधर आजू बाजू में। अब सबसे बड़ी है वो हमें अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को इसका इंपॉर्टेंस बनाना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहला तो हमने हमारे सिलेबस के अंदर इसको इंक्लूड किया, है ना। तो इस सिलेबस में इंक्लूड करने से हजारों बच्चे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। तो देखो सबसे बड़ा प्रोसेस ये है कि एनवायरमेंटल को एजुकेशन और स्कूल सिलेबस। फिर इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ डेज को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे 21 मार्च वाइल्ड फॉरेस्ट डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसके बाद में जुलाई मंथ के हम लोग वन महोत्सव का सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। तो यह कुछ ऐसे डेज हैं जिनका हम सेलिब्रेट करते हैं, और वो खास करके टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों को बीच में अवेयरनेस प्राप्त करने के लिए। फिर टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर। तो कई बार हमारे जो जंगल साफ हो जाते हैं वो फॉरेस्ट फायर की वजह से होते हैं, तो हमें इसके लिए प्रिकॉशन करने चाहिए। केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डाउज इमीडिएटली, इमीडिएटली वो मतलब शांत हो उसके लिए। यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को हमें यूज़ करें, सच ए सोलर एनर्जी, जिसमें बिग एनर्जी, बायो एनर्जी का यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें, और इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल रिसोर्स। देखो ट्रेडिशनल रिसोर्स के बजाय में हम सनलाइट, है ना, सोलर एनर्जी का यूज़ करें, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी इनका यूज़ करें, और वुड विच कैन बी गेट एनर्जी, जो वुड है बच सकता है उससे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पीपल थ्रू द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड ब्रिंग द पब्लिक अवेयरनेस। इसके अतिरिक्त देखिए हम ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, है ना, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को अवेयर करें, उनको उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। तो इस तरीके से देखिए टू
2011 के अंदर हमने वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर के रूप में डिक्लेयर किया था। कई तरह के फॉरेस्ट्री प्रोग्राम भी किए। FRI का मतलब जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया के अंदर देहरादून में लोकेटेड है, अंडरटेक द फॉरेस्ट रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। आपका यह चैप्टर फिनिश हुआ। राइट द क्वेश्चन आंसर नोट्स लिखें। अगर आपके पास मैप बुक है तो प्लीज़ राइट डाउन ओनली इन मैप बुक, यू हैव टू नॉट राइट इन द नोटबुक। ठीक है, मैप बुक है तो आप नोटबुक में नहीं लिखें। मान लो इनकेस यू हैव नॉट ए मैप बुक, यदि आपके पास अभी कोई परिस्थितिवश मैप बुक नहीं अवेलेबल है तो इसे नोट में इसके क्वेश्चन आंसर इसके नोट्स लिखेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।